To start one of the my favorite topic, that is a marketing. Actually, for a marketing, there is a various concept which is associated to marketing, but still, for a sake of a knowledge, it is not important. Actually, it is one of the interesting subject through which you can understand like whole of the concept of the marketing and why marketing is one of the important, or you can say the significant subject through which you can capture the profitability of the organization as well as the needs through which you can satisfy the customer purchasing ability, as well as by meeting this need you can earn profit, right? This is one of the subject through which you can understand the whole of the concept of the marketing, right? First, मार्केटिंग के लिए आपको जो देखना है कि दिस इज नॉट ओनली डिजाइन फॉर अ एमबीए सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट, इट इज वन ऑफ द सब्जेक्ट थ्रू विच यू कैन understand the whole of the concept of the market. And for this theoretical paper, I'm going to give you various examples which is related to a marketing concept and marketing, the terminologies, the various terminologies, and the you can say like a various marketing tasks are also based on that, right? First, before going to start this topic, I want to introduce that what is exactly the marketing, right? If you are asking me about the marketing, everyone imagine in his mind that marketing is a one of the place where we have to just purchase or sell the physical goods and services. On selling of that goods and services, we can earn some profitable. See, as well as a customer point of view, they are satisfied with the consumption of that product or a services. But actually, this is not marketing. Marketing means there is something which actually satisfy the customer need, demand, and by achieving that needs and demands of the customer, the organization can get benefited, right? It means there is a some values in a my point of view, values and a quality transfer from ownership to final customer, that is basically the marketing. इसका मतलब है कि मार्केटिंग वो है जहां पे कुछ वैल्यूज हैं जो क्वालिटी बेस्ड हैं, वो ट्रांसफर हो रही है आपके प्रोड्यूसर से लास्ट फाइनल कस्टमर तक. दिस इज व्हाट अ मार्केटिंग एंड व्हाट दैट वैल्यूज आर. वो आपका गुड्स के रूप में हो सकता है, सर्विसेज के रूप में हो सकता है, कोई भी फिजिकल और नॉन फिजिकल आइटम आप मार्केटिंग में चूज कर सकते हैं, right? In a layman language, marketing is an organizational function and set of process for creating, communicating, and delivering values to the customer and for managing customer relationship in a way that benefit the organization and stakeholder. Right? You can understand it in a different way that it is one of the organizational function and set of procedure for creating, communicating, and delivering values to the customer, right? And maintain the customer relationship through which the organization can benefit it and also its a stakeholder. अब स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? स्टेक होल्डर होते हैं बेसिकली आपके जो गवर्नमेंट हुई, सप्लायर हुए, कस्टमर हुए, जितने भी एसोसिएट्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, वो सारे आपके क्या होते हैं? स्टेक होल्डर, राइट? नाउ
Come to the next part of the marketing. Marketing क्या है? What is marketing management? Because in this subject we are going to study about the marketing management. You can say that if you are considering the management board, it is a combination of art and science through which a target market is selected and getting, keeping and growing customer through creating, delivering and communicating superior customer values. Right? It means management is a what? You can say that is a logical sequence through which you can transfer the values of the organization to the customer and through which the customer can getting and keeping and grown up by utilizing that kind of a values, right? Now what are the marketing concepts? Because this is one of the theoretical concept through which you can go through all of the concept which is related to marketing, from where it was started and what is the today era which define which kind of a marketing concept, right? In a previous in a अगर हम पहले की बात करें तो जो हमारा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट था, the first one production concept came to the market. And what is exactly the production concept? Production concept after the revolution of the industry, everyone want to produce maximum number of quantity to the customer. Because इंडस्ट्रियल revolutions था, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो मैन्युफैक्चरर थे दे वांट टू कि जितना से जितना ज्यादा हम क्या करें, प्रोडक्शन करें, मार्केट में जितने नंबर ऑफ क्वांटिटी ज्यादा होंगे उतना ज्यादा हमारा सेल्स टर्न ओवर होएगा। क्योंकि उस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद एक मार्केट क्रिएट हुआ था, कि इंडस्ट्री आई थी जो मैन्युफैक्चरिंग या जहां पे प्रोडक्ट बनाने की हमारी कैपेसिटी स्टार्ट हुई थी। तो प्रोडक्शन कंसेप्ट में सिर्फ प्रोडक्शन करना, दैट इज ओनली द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इन अ पार्ट ऑफ कि आप जितना से जितना ज्यादा मैन्युफैक्चर करो प्रोडक्ट को। आफ्टर दैट द सर्विस कंसेप्ट केम इनटू लाइट। In a service concept, the product which were available in the market, through addition to that, some kind of a services are also provided, right? And after that, the selling concept में जो basic focus था on a salesperson, how they are going to sell more and more by innovative way, by something promotional technique, किस तरीके से सेल्स पर्सन फिजिकल गुड को सेल कर सकता है। सेलिंग कंसेप्ट उस पे बेस्ड था। वो अपने रिलेशनशिप के बेसिस पे कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा सेल कर सकता है, या जो भी उसकी टेक्निक्स है, जो भी उसकी स्ट्रेटेजी है, जो भी उसमें क्वालिटीज है, थ्रू विच वे ही और शी कैन सेल द प्रोडक्ट टू अल्टीमेट कस्टमर। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट अ प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट में नाउ समवॉट द मॉडिफिकेशन इन अ प्रोडक्ट, कि आप सिर्फ सेल्स पर्सन पे नहीं है, आप अगर क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं तो कस्टमर ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट को परचेज करेगा, राइट? इट मीन्स कि आपका जो अभी तक का कंसेप्ट था कि मैन्युफैक्चरिंग एंड यू हैव टू जस्ट एसोसिएट सर्विस विद दैट product. After that, the salespersons are main whole and a soul who can sell maximum number of a product for his company. And the next concept is a product concept. प्रोडक्ट कंसेप्ट में बेसिकली ये था कि क्वालिटी प्रोडक्ट है तो कस्टमर खुद से ही उस प्रोडक्ट को लेने के लिए आ सकता है। और प्रोडक्ट कंसेप्ट में बेसिकली ये था कि क्वालिटी प्रोडक्ट पे एम्फसाइज था। Now, in a marketing concept, it is based on the relationship of the customer, right? As well as जो आपका market है, that is based on a customer oriented. हमें सिर्फ प्रोडक्ट बेचने तक ही नहीं है,
हमें उस प्रोडक्ट में वो वैल्यूज या वो क्वालिटी इनकलकेट करनी है जिससे कि कस्टमर उस क्वालिटी को यूज करने के बाद सेटिस्फाई हो। मीन्स कि हमारा जो आज का मार्केट है दैट इज बेस्ड ऑन अ कस्टमर ओरिएंटेशन। कस्टमर क्या सोचता है, कस्टमर उस प्रोडक्ट के लिए कितना पॉजिटिव है, कितना उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए दे आर रेडी, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, प्रोडक्ट को बनाना है एंड सेल करना है। मीन्स वी जस्ट और डोंट बिहेव लाइक एज अ प्रोड्यूसर, हमें कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। By various techniques we can analyze some of the market survey, जहां हम कस्टमर का व्यूज बिहेवियर समझ सकते हैं। और आज का जो मार्केट है दैट इज बेस्ड ऑन अ कस्टमर बिहेवियर, नॉट प्रोड्यूसर बिहेवियर, right? And in the last, the combination of all the marketing comes under the holistic concept that internal marketing. इंटरनल मार्केटिंग, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल फैक्टर्स को कैसे मार्केटिंग में यूज कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग मीन्स द वेरियस कॉम्बिनेशन इंटर डिपार्टमेंटल एंड रिलेशनशिप मार्केटिंग। रिलेशनशिप मार्केटिंग में थ्रू कस्टमर रिलेशनशिप आपका क्या है, एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग कि आपकी परफॉर्मेंस अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट आप कितना परफॉर्म कर रहे हो, कितना प्रमोट कर पा रहे हो। दिस इज ऑल अबाउट योर होलिस्टिक कंसेप्ट, right? These all are the marketing concept. Today the market is based on a marketing concept, or you can say like a total quality management. This is whole of the concept of the today era, right? Now, what is modern marketing? Here, there is a one more terminology which is used in a today modern marketing. Uh, this is the first word which is, I believe, that is used in a maximum in today era, right? That is a digital marketing. First, go through a modern marketing. Here, we can emphasize every employee is a marketer. We are not treating separate employees as a separate entity. Every employee in this market behave like a marketer. He can or she can understand the whole of the concept, the strategy, the marketing terminologies as a marketer, right? First, in a modern marketing, that we have to communicate properly the message what we want to convey and what the customer want to listen, the values, the qualities what we want to sell out, right? Here the modern marketing is based on experiences, right? And that's why it today market is based on a experience concept. Now we are more emphasizing on a green marketing also. Green marketing where we can utilize the green environment based marketing, that is a green marketing. That's why in a today era we are more believe believing on the products which basically associated to related to our स्पिरिचुअलिटी, और यू कैन से हमारे पुराने जो आपके आयुर्वेदा थे और जो बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी थी उस प्रोडक्ट्स पे हमारा मूवमेंट ज्यादा हुआ है, राइट? एंड वन ऑफ द मार्केट विच इज नॉट मेंशन इन दिस स्लाइड बेसिकली दैट इज अ डिजिटल मार्केटिंग. Now, we are emphasizing on a green marketing, no doubt, but parallelly, we are facing various challenges in the market, and due to that challenges, we are in a position that we are using much and a much digital era mode, digital or a techno-based marketing concept to promote our marketing values, right? Now, what are the factors which influence the marketing concept? First thing that influence the marketing concept, that is the growth of population. India is the second largest country in a whole of the world that has like population, and not only the population of in a different age group,
पॉपुलेशन हम किसकी बात कर रहे हैं? पॉपुलेशन वो जो कंजम्पशन ग्रुप होता है या जो कंज्यूम करता है सबसे ज्यादा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को, उस पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। एंड इंडिया इज द बिगेस्ट वन, the platform through which everyone can at the age group between that middle age group, जो सबसे ज्यादा परचेजिंग एबिलिटी होती है वो यहाँ की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। और जो मैक्सिमम कंट्री है वो इसीलिए इंडिया एशिया में अगर अप्रोच करती हैं तो इंडिया को सबसे ज्यादा अप्रोच करती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, सिर्फ पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, जो परचेजिंग ग्रुप है उनकी भी पॉपुलेशन ज्यादा है, right? Now the second one factor, that is a changing concept of the family. Today our family system is a different from the past era. आज का जो हमारा फैमिली सिस्टम है वो हम ज्यादा बिलीव करते हैं इंडिविजुअल फैमिलीज पे। तो जो हमारा पहले का परचेजिंग एबिलिटी था उससे आज कंसेप्ट हमारे चेंज हो गए हैं। एंड दैट्स व्हाई दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर टू which influence the marketing concept. Today, the most important factor, that is a more disposable income we have, more discretionary income we have. And that's why this is one of the important factor through which the marketing concept also influenced. Right? Now, the next one जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आज की डेट में, आज के एरा में सबसे ज्यादा जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आया है। सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक गजेट एंड विदाउट वायर कम्युनिकेशन आज हमारे पास स्टार्ट हो चुके हैं। तो दैट्स व्हाई दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर एंड दिस इज द ओनली फैक्टर जो जिसने मार्केट को बहुत फास्टली कैप्चर किया है। मीडिया इज ऑल्सो टेक अप इम्पोर्टेंट रोल टू इन्फ्लुएंस द मार्केटिंग कंसेप्ट एंड द क्रेडिट फैसिलिटी, क्योंकि मार्केटिंग कंसेप्ट आज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, टेक्नो बेस्ड मार्केट हमारा ज्यादा बढ़ गया है, तो क्रेडिट फैसिलिटी भी अकॉर्डिंगली, बिकॉज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन सारी चीजों को समझते हैं और उन्होंने टेक्नो एडवांसमेंट को कन्वर्ट किया विथ हेल्पिंग द कस्टमर एंड अदर people through providing credit facilities. Now, what is the nature of the marketing? First, we are going to study the nature of the marketing. That is, it is one of the legal process through which the ownership is transferred from manufacturer or a producer to the ultimate customer. Right? It is a system of interacting business activities. ये एक तरीके से पूरा सिस्टम ऐसा है जहां पे इंटरैक्शंस होते हैं बिजनेस एक्टिविटीज के, जो वेरियस टास्क हैं, जो बिजनेस ट्रेडिंग के सारी एक्टिविटीज हैं, वो पूरे इंटरैक्ट होते हैं थ्रू दिस सिस्टम। इट इज अ मैनेजरियल फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग business activities that facilitate the movement of goods from producer to consumer, right? The next one, it is one of the philosophy which is based on a customer or a consumer orientation and satisfaction. It creates a dual objective, that is profit making as a part of a producer and a consumer satisfaction, right? This is the nature of the marketing. Now, what are the entities which are involved in a marketing? The first thing, the first जो entity हम consider करते हैं, that the services. क्या सर्विसेज हम दे रहे हैं विथ फिजिकल प्रोडक्ट, दैट इज इम्पोर्टेंट पार्ट विच इज कंसीडर एज अ वन ऑफ द एंटिटी टू मेक दैट अ मार्केट। इवेंट्स, कैसे इवेंट्स हैं? एक्सपीरियंसेस, क्या क्या एक्सपीरियंसेस आपको मार्केट में देखने हैं? पर्सन्स, प्लेस, प्रॉपर्टीज, ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन, ideas and physical goods. Like which kind of events you are going to organize for promoting your market, और क्या event से impact पड़ रहा है? What are the experiences जो भी आपके पास के experiences हैं उनको आप associate करके किस तरीके से आप market को develop कर रहे हो, that is also important entity. Person, for a market there is a physical mode
रिक्वायर्ड एंड पर्सन्स या पीपल जो है वो आपको एंटिटी इंपॉर्टेंट है जो कि मार्केट के लिए रिक्वायर्ड है। प्लेसेस वेयर यू वांट टू प्रमोट इट, कहाँ आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कहाँ आप उसको लॉन्च करेंगे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एंटिटी है। प्रॉपर्टीज, कैसे कैपिटल एम्प्लॉय करना है, ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट एंटिटी है। ऑर्गेनाइजेशन, फर्म, फैक्ट्रीज, प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटी है बिकॉज ये अगर आपके मार्केट में है तभी एक तरीके से आप क्या करोगे, कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो पाएगा। Information, which kind of information you want to communicate, deliver to the ultimate customer, what kind of ideas you are planning to patch up on the mind of the customer. And lastly, that is a physical goods. This is one of the important part because it requires the utilization through customer, and also the producer can benefit it by selling this physical good to the customer. Right? Now, uh, one another important part of this is what are the demands which exist in a market. There are various kind of demand which is mentioned in this part, that is negative demand. नेगेटिव डिमांड बेसिकली जो यूज होता है वो कन्वर्सनल मार्केटिंग के लिए होता है। व्हाट इज कन्वर्सनल मार्केटिंग? इन द नेगेटिव डिमांड स्टेट, अनफेवरेबल पब्लिक ओपिनियन प्रिवेलिंग रिगार्डिंग एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज। कस्टमर के माइंड में ओपिनियन जो है उस प्रोडक्ट के लिए अनफेवरेबल है। इट मे बी पॉसिबल कि जो प्रोडक्ट है वो न्यूली लॉन्च है, अभी लॉन्च ही किया गया है और उसका मार्केट अभी तक यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो उस क्वांटिटी के लिए, उस प्रोडक्ट के लिए कंज्यूमर निगेटिव सोच रहा है। उसके दिमाग में उसका एक इमेजिन या आप कह सकते हैं उसकी वैल्यूज क्रिएट नहीं हो पा रही है। And for that kind of product, there is a negative demand, and this is known as a conversational marketing. For example, जब LPG इंडिया में न्यू लॉन्च हुआ था तो कंज्यूमर उसको इमेजिन नहीं कर पा रहा था, उसकी वैल्यूज नहीं समझ पा रहा था, तो उस टाइम द जो डिमांड थी वो निगेटिव थी, राइट। द नेक्स्ट वन इज अ नॉन एग्जिस्टेंट डिमांड और यू कैन से नो डिमांड, राइट। ये नॉन एग्जिस्टेंट डिमांड किस तरीके की मार्केटिंग में होता है? स्टिमुलेशन मार्केटिंग के लिए होता है, जहां पे व्हेन अ मार्केटिंग कंपनी इंट्रोड्यूस एनी इनोवेटिव प्रोडक्ट इन द मार्केट, स्टिमुलेशन मार्केटिंग इज रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि नो डिमांड है, डिमांड नहीं है, स्टिमुलाई करना पड़ेगा, आपको स्टिमुलेट करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा फॉर दैट काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट कि आप मार्केट में इसको एक तरीके से न्यू है, इनोवेटिव है। फॉर एग्जाम्पल टी इंडस्ट्री जब आई थी इंडिया में, तो वहां पे लोगों को स्टिमुलेशन देना पड़ा कि आप इनको यूज करें एंड देन कंज्यूमिंग ऑफ दैट जो नो डिमांड था इट कैन बी डेवलप्ड इन अ मार्केट। नाउ द लेटेड डिमांड, जो लेटेड डिमांड होती है वो बेसिकली यूज की जाती है डेवलपमेंट मार्केटिंग के लिए। सम प्रोडक्ट्स आर यू कैन से बहुत हिडन होते हैं, जिनका वैल्यूज या कैरेक्टरिस्टिक्स कस्टमर को हिडन रहता है, तो उस हिडन डिमांड के लिए जो आपने डेवलप मार्केट किया, जो उसको और ज्यादा डेवलपमेंट, क्योंकि अभी तक नो डिमांड था, नो डिमांड से अब आप उसको डेवलप करना चाह रहे हैं, उसका मार्केट वैल्यू क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो वो लेटेड डिमांड कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल ऑफ दैट, अगर बात करें नैनो कार जो मारुति ने लॉन्च किया था, at that time it is you can say it was one of the creative or innovative product which capture a middle income group,
राइट। तो उस समय इसे डेवलप किया गया था, लेटेंट डिमांड थी और इसको डेवलप किया गया था, और मेन एम्फेसिस किसके ऊपर था, जो आपके मिडिल इनकम ग्रुप थे। आफ्टर दैट डिक्लाइनिंग डिमांड। डिक्लाइनिंग डिमांड जो होता है वो बेसिकली होता है जो यूज किया जाता है वो रीमार्केटिंग के लिए, एंड रीमार्केटिंग इज यूज इन द डिक्लाइनिंग डिमांड. It is used when the demand of a product or a services is declined. Right. In order to procure the previous demand level, the basic marketing task is to relative increase the demand with the help of the alternations and modification in the product. प्रोडक्ट की डिमांड डिक्लाइन हो गई है और आपको इसका रीमार्केटिंग करना है. रीमार्केटिंग, what are the way through which we can remarketing the product which has no demand in the market or a decline demand in the market. हम उसमें कुछ एडिशनल फीचर्स डाल सकते हैं, हम उसमें पैकेजिंग चेंज कर सकते हैं, उसको मोर क्रिएटिव कर सकते हैं, राइट. तो वो डिक्लाइनिंग डिमांड होती है. फॉर एग्जाम्पल मैगी का एक सर्वे आया था कि मैगी में कुछ लेड कंटेंट मिलते हैं जिसकी वजह से उसका डिक्लाइन डिमांड हो गया था, राइट. तो लैबोरेटरी से प्रूफ होने के बाद जो उन्होंने रीमार्केटिंग स्टार्ट की, उसमें उन्होंने कहीं ना कहीं एम्फेसाइज किया कि हम अब फ्री हैं, जो हमारे पे लिटिगेशन था या हमारे ऊपर जो एक तरीके से जो हमें लैबोरेटरी में जांच करके कहा गया था उसमें जो फाइंड आउट था, अब हम उससे फ्री हैं, हमारे मैगी में ऐसा कोई कंटेंट नहीं पाया गया है और हमने उसको एग्जामिन करके अब नए तरीके से हम मैगी ला रहे हैं, राइट. नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट, इररेगुलर डिमांड. इररेगुलर डिमांड जो थ्रू आउट ईयर कह सकते हैं, वो रेगुलर नहीं रहता है, उसकी बार बार कंसिस्टेंसी चेंज होती रहती है. इररेगुलर होती है जैसे सीजनल जो डिमांड होते हैं, लाइक स्वेटर्स हुए, वुलन क्लॉथ्स हुए, वो आपके अकॉर्डिंगली सेल आउट होते हैं, उसे बोलते हैं इरेगुलर डिमांड, राइट. नेक्स्ट है आपका फुल डिमांड. फुल डिमांड in the situation where the demand of the product is equal to the expected level, right. It is not easy to maintain the sales level and a market alike in the full demand situation. It is one of the difficult tasks. What you are expecting और उतना ही आपका मार्केट में डिमांड हो रहा है, इसको मेंटेन करना, that's why it comes under the maintenance marketing, right. Now the next one is a what, over full demand. Sometime in a market there is a problem that the product there is a shortage in the product due to popularity of that product. ऐसा होता है कि बहुत पॉपुलर हो गया है, इस समय बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है और उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, राइट. और डिमांड बढ़ गई है और शॉर्टेज हो रहा है मार्केट में, तो उसके लिए क्या किया जाता है, डी मार्केटिंग. डी मार्केटिंग किया जाता है. इन दैट केस द नेचुरल रिसोर्सेज, द गवर्नमेंट एज वेल as marketer use strategy to motivate the consumer for the rational use of the product. This is known as a demarketing task, right. Now the last one is a unwholesome demand. अनहोलसम डिमांड क्या होता है, इसे हम काउंटर मार्केटिंग भी कहते हैं. काउंटर मार्केटिंग क्या होता है, basically these are several products which have good sales and a high profit, but they have their adverse impact on the larger welfare of the society and mankind. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो बेबी मिल्क पाउडर, टोबैको यूटिलाइजेशन, सिगरेट, एल्कोहल, हार्ड ड्रग्स, these are the products. वो जो प्रोडक्ट्स हैं आपके, कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट्स, इनके सेल्स बहुत अच्छे होते हैं, रेवेन्यू इससे बहुत जनरेट होता है, बट कहीं ना कहीं ये आपके क्या होते हैं, आपको हार्म्स पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, इंजीरियस फॉर हेल्थ होते हैं. तो इसके लिए देयर इज अ काउंटर मार्केटिंग,
राइट। फॉर एग्जाम्पल, सिगरेट का जो पैकेट होता है उस पे कहीं ना कहीं आप सिगरेट कंजम्पशन तो होता है, सिगरेट का कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है, रेवेन्यू भी उससे बहुत ज्यादा मिलता है, अल्कोहल से भी। बट आप उसके पैकेट पे कहीं ना कहीं देखेंगे तो ये लिखा होता है, इट इज इंजेरियस फॉर द हेल्थ, राइट। अब ये काउंटर मार्केटिंग कहलाता है कि आपने एक स्टेटमेंट लिखा है कि दैट डिपेंड ऑन द कस्टमर परसेप्शन, कि वो उसको किस तरीके से परसीव कर रहे हैं, राइट। दिस इज द 8 डिमांड स्टेज जो कि सबसे ज्यादा मार्केट में अवेलेबल होते हैं, राइट। नाउ continuation of this, what are the factors which is important in a marketing point of view? That you have to knowledge about the behavior of the consumer wants and needs. So you have to study about the consumer behavior. Similarly, study of a buyer behavior, it means क्या उनका बिहेवियर है, बिहेवियर में बहुत सारी चीजें आती है, पर्सनालिटी क्या है, परसेप्शन क्या है, एटीट्यूड क्या है बायर का, डेमोग्राफिक फैक्टर्स आते हैं, ये सारी स्टडी आपको करना है। प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, you have to just study how to product plan and develop it accordingly. The product, you have to just create the policy for the pricing of the product, where you are going to distribute it and promote it, एंड फाइनली अल्टीमेट कंज्यूमर के पास पहुंचने के बाद क्या सेटिस्फेक्शन लेवल है, एंड व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग एक्चुअली जो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू आर गोइंग टू एक्चुअली कंडक्टेड दैट प्रोडक्ट एंड व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, राइट। दिस इज the whole of the factor which has impact on a marketing. Now, first, what is the market? Market is the platform through which the buyer and seller are a free or a independent to compete with each other. As a manufacturer, producer, they are very much independent about what they are going to sell, and buyer are also interested to know about which kind of a products are available in the market, and by consumption of that product they are getting satisfied or not. So market is a physical place or a physical platform or a reason where the buyer and seller both are independent and they are competing to each other. Now, classification of the markets. Market can be classified on the basis of a various parameter. The first one is on the basis of a area. किस एरिया में आपका कैसा मार्केट है, एंड नॉट ओनली कि किस एरिया में, एरिया अकॉर्डिंग द ज्योग्राफिकल वे, हिली एरिया, प्लेन एरिया, नॉर्दर्न रीजन, साउदर्न रीजन, आपने उसको वेरियस रीजन के अकॉर्डिंग बांट रखा है, रूरल, अर्बन, that is also based on a area wise, right, on the basis of a time, प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी के अकॉर्डिंगली आपने क्लासिफाई किया है द मार्केट, ऑन द बेसिस ऑफ अ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन की बेसिस पे कि आपका ट्रांजेक्शन कैसा है, उसके बेसिस पे आपने मार्केट को क्लासिफाई किया, ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलरिटी ऑफ द प्रोडक्ट, वेदर इट इज इरेगुलर प्रोडक्ट, रेगुलर प्रोडक्ट, उसके बेसिस पे आपने मार्केट को क्लासिफाई किया, तो दैट इज नोन एज अ रेगुलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस, आपका बिजनेस वॉल्यूम कैसा है, वेदर इट इज लार्जर स्मॉलर, उस वॉल्यूम के बेसिस पे मार्केट क्लासिफिकेशन कहलाता है वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस, एंड द लास्ट वन इज द मार्केट इज अ क्लासिफाई on the basis of a nature of the goods, right. Now the next one, this is one of the important part, that is the difference between marketing and a selling. Maximum consumer, they don't actually get the difference between the marketing and selling, and uh,
They use the similar word for a marketing and a selling, but here there is a huge difference between marketing and a selling. In a marketing, we are focusing on a customer needs. जो मार्केटिंग होता है उसमें हम कस्टमर ओरिएंटेटेड होते हैं, कस्टमर ओरिएंटेशन होता है तो मेन एम्फेसिस हमारा कस्टमर पे होता है, जबकि सेलिंग में फोकसेस ऑन अ सेलर नीड। जो हमारा नीड होता है वो सेलर की नीड पे बेस होता है, उस पे हमारा एम्फेसिस होता है। मार्केटिंग में द प्रोडक्शन जो या प्रोडक्ट स्टार्ट होता है बिगिन बिफोर प्रोडक्शन। मार्केटिंग वहीं से स्टार्ट हो जाता है जब आपने प्लान करना शुरू किया कि हम प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं। अगर ये आइडिया भी आ गया तो यहाँ से आपकी मार्केटिंग स्टार्ट होगी। बट इन सेलिंग इट बिगिंस आफ्टर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन होने के बाद से सेलिंग स्टार्ट होता है। इन अ मार्केटिंग कंटिन्यूज आफ्टर सेल्स। कंटिन्यूज आफ्टर सेल्स का मतलब है कि मार्केटिंग जो है सेल्स के बाद भी कंटिन्यूस होता है थ्रू फीडबैक ऑफ द कस्टमर। बट सेलिंग में आपका द लास्ट जो फेज है दैट इज कम टू एन एंड आफ्टर सेल ऑफ द प्रोडक्ट। कस्टमर के पास goods आ गया and after that you are just completing the selling. In a marketing that is based on a philosophy of business but it is based on a routine process in a selling। जो रेगुलर बेसिस पे आपका प्रोसेस हो रहा है सेलिंग वो कहलाता है, जबकि बिजनेस की पूरी कंसेप्ट फिलॉसफी वो मार्केटिंग है। मार्केटिंग में प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन, बट हियर द प्रॉफिट थ्रू ओनली द सेल्स वॉल्यूम व्हाट यू आर गोइंग टू sell in the market. Marketing is a long term perspective, but selling is a short term perspective, right? In a marketing, customer are the first priority जो होती है सिर्फ कस्टमर ओरिएंटेशन होता है, जबकि सेलिंग जो है उसमें प्रोडक्शन को हम क्या प्रोडक्ट ओरिएंटेशन होता है, हम सिर्फ प्रोडक्ट को सोचते हैं, राइट? Now, this is the last part of today lecture, that is a marketing management task. What are the tasks which are associated in the marketing management? In this, the first one is a developing marketing strategy and plan. Right, developing marketing strategy and plan. Before going to sell your product in the market, you have to just develop the marketing strategy and plan. What you are going to sell, कौन सी वैल्यूज आप मार्केट में सेल करने जा रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट टू डेवलप योर स्ट्रेटेजी, राइट? कैप्चरिंग मार्केटिंग इनसाइट। मार्केट में इन डिटेल जाके आप सारी चीजें सर्वे करके उसको कैप्चर करिए कि मार्केट में क्या नीड है। कनेक्टिंग विथ अ कस्टमर बाय कंडक्टिंग द सर्वे, interaction, relationship, whatever the tools you are going to adopt to connect with the customer, it is needed, right? The next one is a building strong brands. Strong brand बनने के लिए you have to just sell your values with a quality value, ethical mode, through which you can make a strong strengthen on a customer, right? Shaping the market offering, जो भी आप ऑफर कर रहे हो उनको एक प्रॉपर डिजाइन करना, किस तरीके से आप उसको सेप आउट करोगे, ये सारी चीजें आपके मार्केटिंग मैनेजमेंट टास्क में आती है। नेक्स्ट है आपका what kind of a values you are going to deliver and what are the way how to communicate these value to the ultimate customer, and finally that creating a long term growth, because using all these tasks you can survive in the market for a long term, right? This is all about your task कि मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्या क्या टास्क रिक्वायर्ड होते हैं थ्रू विच वी कैन मैनेज होल ऑफ द मार्केटिंग मैनेज, राइट? दिस इज ऑल अबाउट योर मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग हम समझ गए, व्हाट आर द डिमांड्स स्टेट इन अ मार्केटिंग, ये सारे फैक्टर्स मैंने आज के लेक्चर्स में आपको डिफाइन कर दिया। आफ्टर दैट जो हम है इसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे जिसमें हम अदर
फैक्टर्स और भी जो फैक्टर्स हैं, जो और कंसेप्ट हैं, उसके बारे में जानेंगे। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माय वीडियो।